All right, Bismillahirrahmanirrahim. So, in the last class, we were done with MJ23 three papers of both GC and IGCSE. Today, what we're going to start off with is going to be the ATP paper of GCE, right? So let's start off with the paper. अब वो कह रहा है, some students investigated the movement of water molecules by water through osmosis using potato tissue. They were provided with वालेकुम अस्सलाम बेटे. Uh, they were provided with a balance, 5 cylinders, a potato tissue with equal diameters, 5 different concentrations of sodium chloride solution at room temperature, 5 different test tubes, a sharp knife, a white tile, marker, pen, pencil, paper towels. They used the following method. Label the test tube 0, 2%, 0% to 2% to 4 to 6 to 8. Cut each of the potato cylinders so that each has a mass of 3 grams. Cut each of the place one cylinder of potato in each test tube. Add the matching concentration of salt solution in each test tube so that the potato cylinder has its in it is covered as shown in figure 1.1. Note the time and leave the potato cylinders in the solution for 40 minutes. After 40 minutes, remove the potato cylinders from the test tubes. Dry each potato cylinder using a paper towel. Measure and record the mass of of each potato cylinder. ठीक है? तो भाई बेसिकली कहानी क्या चल रही है? हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लेंथ के ना पोटेटो टिश्यू लिए, ठीक है? And what we are doing is we are basically putting them in different solutions having different concentrations. अब इस चीज को देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बैक व्हेन वी टॉकिंग अबाउट diffusion osmosis and active transport, and when we looked at the effects of different concentrations or different water potentials on plant tissues. Potato is a plant tissue, right? अगर मेरे पास पोटेटो टिश्यू, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, 30 मिलीमीटर है, राइट? अगर मैं उसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखूंगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जा रहा होगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा होगा. देर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन आइदर द लेंथ और द मास. But if I'm going to put it into a hypotonic solution, water molecules are going to move in, causing it to swell up or causing each individual cell to swell up. Hence, the whole tissue is going to increase in mass or increase in size. But when I'm going to put it into a hypertonic solution, a solution that is going to have a lower water potential, it's going to lose water, because of which there's going to be a decrease in length and mass compared to the original length, right? अब अगर हम लोग यही वाली लॉजिक यहाँ अप्लाई करें, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई हमारे पास जो 0.4 या 4% वाला जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, वो हमारे पास क्या है, दैट्स बेसिकली आइसोटोनिक टू द पोटेटो टिश्यू. फॉर एग्जांपल, if I am going to decrease its concentration, will the solution become hypertonic or hypotonic? ये बता दो. It will become it will become hypotonic. Very good. Water potential बढ़ जाएगा, solution कम होगा, तो hypotonic हो जाएगा. ठीक है? Make sense? अब इसी तरीके से अगर मतलब क्या हो रहा है कि भाई वाटर पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, जितनी कंसेंट्रेशन कम होगी वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा. Similarly, if I'm going to increase the concentration from 0.4 to 0.8, the concentration of the solutes is increasing, right? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वालेकुम अस्सलाम बेटे, these solutions are going to be hypertonic, as in उनका जो water potential होगा वो क्या होगा, वो कम होता रहेगा. ठीक है? सो सिमिलरली अगर हम लोग देखें, कॉमन सेंस लगाएं, मैं कह रहा हूँ भाई फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नहीं पता, मैं आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन. अगर मेरे पास यहाँ नो चेंज इन लेस मास आ रहा है या लेंथ आ रहा है, तो मैं 4% से इतना सोल्यूशन के कंसेंट्रेशन कम करता जाऊंगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू एंटर इनटू दिस पोटेटो टिश्यू. So we are going to see an increase in length or the mass, right? Mass बोला बस ने. Because here in hypertonic solution, the potato tissue are losing water, they will have a decrease in mass. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ठीक है?
तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, पहले थोड़ा सा ना ये माइंड मैपिंग कर लिया करो, ठीक है? अच्छा, नाउ अब वो कह रहा है कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स इन टेबल 1.1, नंबर 1। फिर उसके बाद कह रहा है फिगर 1.2 shows the balanced readings for the potato cylinders taken from 0% and 8% salt solutions after 40 minutes। तो उसका जो इनिशियल मास हमारे पास था वो सबका 3.0 था, राइट? तो 0% सोल्यूशन के अंदर उसका फाइनल मास 3.9 ग्राम्स आ रहा है, राइट? सो वी गोइंग टू राइट 3.9 राइट हियर। और मास किस में आ रहा है? ग्राम्स के अंदर आ रहा है। स्टार्टिंग मास भी ग्राम के अंदर होगा, चेंज इन मास भी ग्राम्स के अंदर होगा। तो कितना मास बढ़ा हमारे पास? 0.9। 3.9 माइनस 3.0, 0.9। ठीक है। और क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो हम लोगों ने पॉजिटिव आ जाएगा, ग्राम्स लिखेंगे, बिल्कुल बेटे। सो इजी, इजी। 3 मार्क्स, राइट? अच्छा, 8% वाले सोल्यूशन के अंदर क्योंकि वो हाइपरटोनिक था उसने मास लूज करा, राइट? तो भाई हम लोगों ने क्या देखा, उसने उसका फाइनल मास कितना आ रहा था? 2.2 ग्राम्स आ रहा था। तो कितना मास लूज करा? -0.8। 2.2 माइनस 3.0 माइनस 0.8 आ जाएगी। मास कम हो रहा है तो हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगा दिया। मेक सेंस, राइट? अच्छा जी, अब अगला सवाल कह रहा है वाटर कैन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द पोटैटो सेल्स बाय ऑस्मोसिस, सॉल्ट कैन नॉट मूव आउट ऑफ द पोटैटो cells। Use the information to explain the results of the test tube containing 6% salt solution। तो 6% सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज इन मास हुआ है ना, तो हम क्या बता देंगे कि द 0.6% salt solution was hypertonic to the cytoplasm of potato tissue। आप सिर्फ पोटेटो टिश्यू भी लिख सकते हैं। सो water moves out of the potato tissue via osmosis। ठीक है जी। डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है, तो अगेन 2 मार्क्स में पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, राइट? सो इट्स गोइंग आउट कॉजिंग अ डिक्रीज इन मास, ये भी लिखेंगे हम लोग। उपसी। ऑलराइट। अच्छा, अब अगला सवाल कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द पोटैटो सिलेंडर्स हैव द सेम मास at the start of the investigation to by keep reliability to make comparisons, valid comparisons। ताकि भाई जितना भी डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, right? So we can basically make, let's say, what we call as, we can compare all of these experiments, right? Because if the, again, फिर change in mass हमारे पास valid नहीं होगा ना। ये चलो बताता हूँ बेटा। So यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कह देंगे to make valid comparisons, right? Okay। अच्छा, initial control is basically, एक तो होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट which would have something else other than the independent variable। ताकि हमें पता चले कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो है जो हमारे पास इफ यू नो एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वही वाली एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि भाई अगर मुझे बेनेडिक्ट टेस्ट करना है तो भाई आई वांट टू नो कि क्या रिड्यूसिंग शुगर ही वो चीज़ है जो हमारे पास बेनेडिक्ट्स का कलर चेंज करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेनेडिक्ट्स को डिस्टिल वाटर के अंदर भी डाल के देखूंगा, तो उसी के कलर चेंज आया नहीं आया। So इससे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई distilled water is not the one that is changing the color of the Benedict from blue to green to or yellow to orange to red. It's only the reducing sugars.
दैट्स अ कंट्रोल, और दैट्स अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब अगला सवाल कह रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट solutions are made using different volumes of 10% salt solution. Calculate the volumes of 10% of salt solution and distilled water needed to make 10 centimeter cube of a 4% salt solution. Very easy. हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, C1V1 is equals to C2V2। हमारे पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितनी है, 10% है। उसकी मैं कितनी वॉल्यूम लूंगा कि मेरे पास डिजायर्ड कंसंट्रेशन जो कि 4% है वो बन जाए, और उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो, 10 cm3। तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 × 10 / 10। तो 10% सोल्यूशन की मैं कितनी वॉल्यूम लूंगा, यूनिट्स मत भूलिएगा, 4 cm3। इसको 10 cm पूरा करने के लिए मैं कितना डिस्टिल वाटर डाल दूंगा, 6 cm3। राइट? Does anyone have a problem with this particular formula? Does anyone want me to revise the C1V1 is equal to C2V2? Okay, moving on. Explain why using a 10 centimeter cube measuring cylinder is better than using a 50 centimeter cube beaker for measuring the volumes of distilled water and salt solution. अच्छा भाई गुलाम क्या कह रहा है? गुलाम, what does a yes mean? The formula देखो बेटे, C1V1 is equal to C2V2 क्या बता रहा है, इसको बिल्कुल आसान से वो करो। तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर बॉटल के अंदर रूह अफ़ज़ा है, राइट? सो रूह अफ़ज़ा द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। So Kamal, you have रूह अफ़ज़ा, right? अब let's say you are given up, you have the रूह अफ़ज़ा in the bottle. For example, I asked for, let's say, a 4% रूह अफ़ज़ा, and you're supposed to put it into a glass having a volume of 250 centimeter cube. तो उस 250 सेंटीमीटर क्यूब वाले ग्लास के अंदर तुम रूह अफ़ज़ा की वॉल्यूम कितनी डालोगे और उसके ऊपर पानी कितना मिलाओगे? आर वी कैरिंग दिस? कुमेल, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मनाइल, आर वी कैरिंग दिस एज वेल? ठीक है। सो अब कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद क्या है, मैंने एक 250 cm क्यूब का ग्लास लिया, ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम नंबर 2। इसमें मुझे और टोटल कंसंट्रेशन कितनी बनानी थी, फॉर एग्जांपल 5% रूह अफ़ज़ा बनानी थी। ये मेरी कंसंट्रेशन 2 हो गई, C2 हो गई, राइट? तो मेरे पास जो ओरिजिनल जो बॉटल के अंदर रूह अफ़ज़ा है, मैं उसकी कितनी वॉल्यूम डालूंगा? लेट्स से कि भाई जो ओरिजिनल रूह अफ़ज़ा है ना, उसकी कंसंट्रेशन 100% है। तो सबसे पहले वी फाइंड आउट V1। इसका V1 कैसे निकालेंगे? 5 × 250 डिवाइडेड बाई 100, राइट? सो 5 1 5, 5 हाउ मेनी टाइम्स 100? 5 25 100, राइट? सो हाँ, 5 25 100, राइट? 25 नहीं 5, एक मिनट, let me do use a calculator for it. So 5 divided by 100 is going to be 5 into 20 years. 5 into 20 is 100, right? So 250 divided by 20 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12.5। सो मैं आउट ऑफ दिस 250 cm क्यूब मैंने रूह अफ़ज़ा कितना डाला, 12.5। अब उसमें मैं 250 cm क्यूब पूरा करने के लिए वाटर कितना डाल दूंगा, 250 माइनस 12.5 कितना हो गया, 235, सॉरी 237.5। आर वी गेटिंग दिस? रेशियो मेथड से, हाँ बिल्कुल बेशक रेशियो मेथड से होंगे, ठीक है। हम कंसंट्रेशन देखो, अगेन वी कैन डू द रेशियो मेथड व्हाट एवर ही फील्स, राइट? लेकिन यहाँ रेशियो मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, आप इसको देखो, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेशन वॉल्यूम वाला जब जब आए, जब हम इसको दोबारा वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब इसको दोबारा देखो। अब मुझे एक बात ये बताओ, सबसे पहले वी हैव दिस फार्मूला, राइट? कंसंट्रेशन 1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन। अब मुझे बताओ,
ओरिजिनल सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटे? कुमैल, मनाइल? 10% है, राइट? अरे कुमैल, क्या हो गया बेटे? हम वी आर पास द डू ऑफ द वाली स्टेज। यहाँ देखो, हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन कितना है? 10% है, राइट? ये मेरी कंसेंट्रेशन नंबर 1 आ गई। इसकी मैं कितनी वॉल्यूम लूंगा कि मेरे पास कितनी कंसेंट्रेशन का सॉल्ट सोल्यूशन बन जाए? मनाइल, व्हाट्स माय डिजायर्ड कंसेंट्रेशन? मुझे कितनी कंसेंट्रेशन का रूह अफ़ज़ा बनाना है भाई? 4% का, वेरी गुड। ठीक है। और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 10, राइट? आर वी गेटिंग दिस? तो V1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 × 10 ÷ 10, 4। तो अब मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर 4 cm³ 10% सोल्यूशन डाला। उसमें मैं कितना पानी डालूंगा कि वो डाइल्यूट होकर 4% हो जाए? जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगी उसमें से इतनी वॉल्यूम निकाल दोगे। 10 - 4 = 6। मेक सेंस? इसकी वॉल्यूम ठीक ही लेनी है, एग्जैक्टली। सी वन की वॉल्यूम सेम आनी चाहिए, V1 सेम आना चाहिए, ठीक है। सो देखो, रेशियो मेथड्स हमेशा नहीं चलता ना। या वी वांट अ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस मच, उससे स्पेसिफाई करा पहला बच्चा। माइनस करेंगे ना। देखो बात सुनो, तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम 10 होनी चाहिए ना फातिमा। अब तुमने उस 10 में से 4 cm³ सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। तो 10 बाकी कितना बचे तुम्हारे पास? बस दैट्स इट। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई, आप मेजर आसान अल्फाजों के अंदर, आप 10 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल क्यों करेंगे, बीकर इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर इज मोर एक्यूरेट। दैट्स व्हाट यू टू टेल देम। दैट्स इट, राइट? अच्छा, अब वो कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट ड्राइड द पोटैटो सिलेंडर बिफोर ऑब्टेनिंग देयर फाइनल मास। क्योंकि देखो, जब मैं उसको उस पोटैटो सिलेंडर को, जब मैं उस सोल्यूशन में से निकालूंगा, दिस नॉट अ सिलेंडर, जब मैंने इस पोटैटो सिलेंडर को उस बीकर से निकाला, राइट, और उसको जब मैं वे करने लगा, तो उसके ऊपर लेट्स से भाई थोड़ा बहुत वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे। वो भी तो ऐड अप कर देंगे ना मास। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इसको पेपर टॉवल से सुखाया, एक्स्ट्रा वो जो उसके ऊपर लिक्विड लगा हुआ था उसको हटाया, फिर सिर्फ ड्राई मास से कैलकुलेट करा। एंड एज फातिमा सेड कि सर, टू रिमूव, और रादर टू प्रिवेंट द मास ऑफ द solution to be added, or mass of the solution remaining on the potato, yeah, remaining to be added to the actual mass. So we, हाँ exactly वही वाली बात हो कि बनाइल कैरी के set is done, so we don't end up weighing the mass of the water and potatoes, the solution and the potato all together. Exactly, so any alternative wording would do. अच्छा जी, अब वही कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अगेन, लुक एट द स्टेटमेंट दैट एग्जामिनर इज गिवन। कंस्ट्रक्ट, हमेशा प्लॉट करेंगे, फ्री हैंड नहीं बनाना, ऑफ द ग्राफ ऑफ द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन अगेंस्ट चेंज इन मास, राइट? तो उसने हमें एक्स एक्सिस ऑल्सो दिया हुआ है पहले से, या हम लोग परसेंटेज चेंज इन मास निकाल लेंगे, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Right, I'm just going to paste it right here.
अच्छा जी, तो अब मेरे पास परसेंटेज 0 to 8 जा रही है ना, तो ये मेरे पास 0 आ गया, ये मेरे पास 2, 4, 6, 8। सो ये आसान है ज़्यादा हमारे पास। अच्छा भाई, आमना ये कह रही है, आई नो राइट। देखो आमना, वही वाली बात देखो, एटीपी इज बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज। एटीपी के अंदर देखो, अगेन अभी तक हम लोगों ने जो पूरा सवाल करा, उसके अंदर द ओनली थिंग दैट केम आउट ऑफ द सिलेबस इसके भाई हाइपरटोनिसिटी के अंदर वाटर मूव आउट करेगा, वरना इट्स बेसिकली कि भाई दिमाग कितना चलता है, दैट्स इट। एटीपी इज लाइक, देखो देयर इज अ रीजन वाई उसकी वेटेज कम है। इज इट द इजीस्ट पेपर देयर इज, ट्रस्ट मी। इट्स ओके, यू नॉट कुक्ड, हमने यू नॉट कुक्ड, नोबडी इज कुक्ड। अच्छा जी, अब देखो, अब हमें क्या करना है, दूसरी बात, जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगी वो ऊपर आएंगी, नेगेटिव वाली नीचे आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको ना पॉजिटिव 0.5 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 0.5। हम्म 1.0, हम 0.25 नहीं, 0.25 ले सकते हैं, चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेगेटिव पर आ जाओ, -0.5, -1.0, -1.5, ठीक है। और इसको बड़ा भी कर सकता है, 1 को नीचे भी लेकर सकता है, लेकिन नहीं, लेट्स लीव इट लाइक दिस। अच्छा, अब हमारे पास 0 पे कितना आ रहा है, +0.9 आ रहा है ना। तो अगर हमारे पास 10 ब्लॉक्स 0.5 के हैं, तो एक ब्लॉक 0.05 का हो जाएगा, तो मतलब 0.9 इधर आना चाहिए। फिर 2 के ऊपर 0.1 आ रहा है, तो 0.1 हमारे पास इधर आना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा भाई, तुम लोग क्या कह रहे हो, ज़रा कह रहे फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड विच द मास प्रोडक्शन इंक्रीज कैन बी मेजर्ड, सो दैट ओनली द मास, नहीं ज़रा हमें यहाँ स्पेसिफिकली बताना होगा बेटे कि वाटर को रिमूव क्यों कर रहे हैं, जीरो वाले लाइन के नीचे क्यों प्लॉट कर रहे हैं जीरो एक्सेस क्या, क्योंकि बेटे मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज भी है ना चंदा। तो ये तो जीरो हमारे पास वाई एक्सेस का जीरो है मनाइल। तो 2, 4, 6 तो रखा मैंने, लेकिन मुझे जीरो भी तो ऐड करना है मेरा बच्चा। सो हम ये बता देंगे भाई, सो दैट द वॉट दिस एनी रिमेनिंग मास ऑफ एनी रिमेनिंग सोल्यूशन वुड नॉट ऐड अप ज़ारा। नहीं ठीक है, अगर अगर बॉक्स गैप बट नेक्स्ट टू 0.5 में से 1, 10 बॉक्स के ऊपर नहीं, देखो बॉक्स के बॉक्स की जो अरेंजमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। या बेसिकली मोहिब, दैट्स इट। सर ये जीरो वाली लाइन पे नहीं प्लॉट होंगे एक्स एक्सेस वाले पॉइंट, बेटे फिर आप ये वाली वैल्यूज नेगेटिव कैसे लेंगे। आप मुझे बताइए, चेंज इन मास आपने लिखा है, सॉरी चेंज इन मास इन ग्राम्स, माय बैड। ये चेंज इन मास है, ये आप नेगेटिव के अंदर कैसे लेंगे ईशाल, ईशल, लाइबा। उसने देखो ऑलरेडी हमारे लिए ये वाली एक्सेस मार्क करके रखी हुई है, देयर इज अ रीजन। उसको पता था कि लाइबा एग्जाम देने आएगी। वो बीच वाली हॉरिजॉन्टल, अरे मेरा बच्चा, चलो अगर मैं यहाँ लगा फॉर एग्जांपल, चलो मैं तुम लोग की बात मान लेता हूँ, सही है। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ भी कर सकते हो, इसको यूं भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। ठीक है, बात वही होगी, हमारे पास ग्राफ यूं आएगा, ठीक है। ओ नहीं, ओके नो, ओ ओके, यू गाइस आर एक्चुअली राइट, सॉरी, यू गाइस आर एक्चुअली राइट। It's my fault. It's my fault. No, jokes on me. Jokes on the person who had a C in his O-level maths. My bad. My bad. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So they're going to come here. My bad. Okay. Sorry, Manil. Sorry. Sorry, anyone who are like, who I made fun of. I know, right? Sorry, Laiba. My bad. Okay. Coming back here. अच्छा, okay. 4 के ऊपर वैल्यू हमारे पास -0.5 आ रही है, so it's going to be here. I'm getting old. I'm not, that's why I'm beating my love. Okay, but thank you for correcting me, guys. Thank you so very much. अच्छा जी, तो ये 0.6 पे 0.7 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6, 0.7 शुड बी हियर।
एंड देन वी हैव 8 पे 0.8 है, तो 0.8 हमारे पास इधर आ जाएगा, सो दिस इज वो राइट हियर। ठीक है। ओके, आई डू यार, आई डू। ओके, मूविंग ऑन। वी मार्क, यस। तो ये जीरो वाली लाइन, ये बेटा हमारे पास नेगेटिव ग्राफ है ना, तो मैं ये बताना है कि भाई हम अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास this is the graph, this is the x axis, right, and this whole thing is the y axis, नीचे वाली x axis नहीं है। ठीक है जरा। ओके, कमिंग बैक हियर। तो अब हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मंसूर, गिव मी अ मिनट, पुट द ग्राफ फर्स्ट। राइट, अगेन प्लीज यूज अ रूलर एंड अ शार्प पेंसिल फॉर दिस। इससे ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा। राइट, सो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट वी हैव टू डू। ठीक है मंसूर, लेकिन ये मैंने कर्व बनाया क्योंकि फ्री हैंड है, या हमें कर्व नहीं बनाना, या उसने प्लॉट का बोला है, सो वी गोना डू दिस। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन्स। नाउ अब अगर हम लोग देखें, वो कह रहे हैं ईच पोटैटो सिलेंडर हैड अ स्टार्टिंग मास ऑफ 3.0, यूज्ड योर ग्राफ टू डिटरमाइन द फाइनल मास ऑफ पोटैटो प्लेस्ड इन 3% सॉल्ट सॉल्यूशन, शो यूर वर्किंग ऑन द ग्राफ। तो हमारे पास 3% किधर है, 3% हमारे पास ये बीच में आ गया, सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट। दिस शुड बी 3%, 3% का हमारे पास मास कितना आ रहा है, सो इफ दिस इज 0.05, दिस गोइंग टू बी 0.075, राइट। ये 0.05, ये 1 ये 0.1, राइट। इसके बीच में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.075। ओ लेवल्स के नहीं है मेरा बच्चा, लाइबा। और नेगेटिव के अंदर आएगा, नेगेटिव का साइन मत लगाना भूलिएगा, कम हो रहा है। अच्छा जी, अब सो दिस इज समथिंग दैट आई नॉट, आई ऑलरेडी रोट इट सो दैट इट सेव्स अप इन द टाइम। अच्छा जी, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन determine the concentrate do design investigation to determine the concentration of salt solution in which no movement of in and out of water is equal. Your investigation should be based on the method described in page 3, but using the changes in length of the potato tissues, not the changes in mass. All right. Give full experimental details. तो अब हम बता देंगे कि भाई take 5 potato tissues of equal lengths. ओह फाइन, सॉरी, थैंक यू हमजा फॉर रिमाइंडिंग मी। फाइनल मास कह रहा है ना, तो 0.075 आया, थैंक यू हमजा। So it's going to be 3 minus 0.075, which is going to be 2 point what? 3 minus 0.075, it's going to be 2.925, right? Okay, excuse me. Now, हमने कहा कि भाई take 5 tissues of equal lengths, for example 3 centimeters, with the same, और 30 millimeters भी कर सकते हो उसको, ठीक है। 30 millimeters is going to be better with same dimension। सेम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि उनकी width भी सेम होनी चाहिए, so that the surface area to volume ratio is also equal। all right, अच्छा जी। uh, keep them in 5 different test tubes, each having a different salt concentrations, having equal volumes, for example 10 centimeter cube, ranging from 0% to 8% for 60 minutes at the same temperature। ठीक है, after the ATP is बनाया। After 60 minutes, calculate the final length of potato and subtract it from the initial length to find out the change in length using a ruler. Plot the data on the graph and look at the concentration where there will be no change of length, right?
अब इसके बाद हम एक और चीज क्या लिखेंगे? इट्स अ लो रिस्क एक्सपेरिमेंट, बट द नाइफ should be kept away from the fingers, or it should be cut on a, let's say, what we call as it should be cut on a flat surface. ठीक है? या तो कोई मसला मेरे बच्चों? ओके, नाउ सर लेंथ में क्या चेंज आएगा? इंक्रीज नहीं, लेंथ भी चेंज होती है बेटा। हमारे पास लेंथ छोटी है, बड़ी हो जाती है। एएस लेवल के अंदर फातिमा, व्हेन यूल गो, यूल बी डूइंग दिस प्रैक्टिकल ऑन योर ओन एज वेल, तो उसके अंदर यूल सी कि भाई हमारे पास लेंथ के अंदर भी चेंज आता है। ऑलराइट। अच्छा जी। मास जब भी देखो, जब भी मास डिक्रीज होगा, वाटर जाएगा ना, तो द सेल्स विल श्रिंक, they'll get plasmolyzed, so the tissue is going to shrink as well. अच्छा, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड क्या कर रहे हो? हमारे पास चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है ना, किस चीज के ऊपर? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के ऊपर। ऑलराइट। अच्छा जी। परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन तो बेटे वो है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, पोटेटो स्टोर स्टार्च, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। हम कहते हैं कि भाई आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड, डिस्क्राइब कर दो इसको। इज एडेड on a potato tissue if starch is present, it will turn blue black, right? From orange इस तरीके से। फाइनल लेंथ भी लिखता है ईशल, कोई मसला नहीं है। फाइनल लेंथ का भी मसला नहीं है। ऑल राइट। नाउ the starch can be broken down to glucose for the plant to use in respiration. Name the reagent used to test for the presence of glucose. Glucose is a reducing sugar, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? Benedict's reagent. Easy peasy lemon squeezy. Okay. अच्छा जी। Now, so moving on with the next part. अच्छा जी, question number two says 2.1 is a micrograph of a leaf from a potato plant, right? Make a large drawing. So we're going to draw the leaf exactly as it is, like this. ठीक है? Now, where am I losing marks here? Unjoined lines here, here, idhar, 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 unsmoothened lines. So please make sure that the lines or whatever the diagram that you're drawing, it should be smooth like this, right? जितना कर सकते हो उतना कर लीजिएगा। हाँ, जब भी मैंने दोबारा कर दिया। नो, वी डोंट शेड, वी नेवर शेड। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द माइक्रोग्राफ टू जॉइन लाइंस ए एंड बी। तो हम लोग अगर उसको यहाँ बनाए, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी हमारे पास कितना आ रहा है? सो इट्स कमिंग आउट टू बी 5.2 सेंटीमीटर्स के अंदर है। तो मिलीमीटर्स में कितना हो जाएगा? 52 मिलीमीटर्स, राइट? अब वो कह रहे हैं भाई यही उसके अंदर बना दो, अपनी ड्राइंग के अंदर बना दो। हमारे पास ड्राइंग के अंदर ए बी किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, द वाइडेस्ट पॉइंट। ये हमारे पास कुछ आ रहा है 7.9,
राइट हियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटे लोग, सॉरी, 79। अब क्या करोगे, वो कह रहे भाई मेजरमेंट्स भी, मैग्निफिकेशन हम लोगों ने कहा कि भाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज drawn divided by actual size of image drawn is 79 millimeters divided by कितना हो जाएगा हमारे पास 52 millimeters। तो हमारी ड्राइंग उस ड्राइंग से कितना बड़ा है, सो 79 डिवाइड बाय 52, इट्स कमिंग आउट टू बी 1 पॉइंट, गिव योर आंसर टू वन डेसिमल प्लेस, 1.51 आ रहा है, तो हम लोगों ने 1.5 कर दिया इसको। ठीक है। हाँ, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता बेटे, कैंसिल हो जाएंगे ना चंदा ये दोनों। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फिगर 2.2 is a photo micrograph of a leaf from a sweet potato plant. Describe one visible difference and one visible similarity in the structure of the potato leaf and the sweet potato. भाई दोनों के पास वेन्स हैं, यहाँ भी वेन्स हैं, यहाँ भी वेन्स हैं। ठीक है, तो हमने एक सिमिलरिटी क्या लिख दी कि भाई बोथ हैव वेन्स। ऑलराइट। उसके अलावा अगर हम लोग डिफरेंसेस के ऊपर आए, तो अगर हम लोग यहाँ देखें, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ना दिस पर्टिकुलर प्लांट इज मोर पॉइंटी देन दिस पर्टिकुलर प्लांट। राइट। दूसरी बात अगर हम लोग देखें, इसकी जो लीफ, इसकी जो एज है, द एज ऑफ द लीफ और दिस लीफ इज स्मूदर, दिस लीफ इज नॉट स्मूथ, इट इज पॉइंटी एट सम पॉइंट्स। राइट। आर वी गेटिंग दिस, ब्रांचिंग वेन्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। टू टू नहीं, वी कांट राइट 2.2 इज मोर प्रिटी। हाँ, इट्स नॉट अ फोटो माइक्रोग्राफ सो। हाँ सही है, इसे पेटियोल कहते हैं बेटे। तो ज्यादा बड़ी इसकी पेटियोल छोटी है, स्मॉल पेटियोल, लार्जर पेटियोल, कुछ भी लिख दो इसमें से। ठीक है। नहीं नूर, देखो दिस नूर, दिस कैन वर्क इन एटीपी बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन थ्योरी। पेटियोल होता है, ठीक है, तो लेट्स राइट दिस के पेटियोल इन figure 2.2 is longer, not larger, longer। ठीक है। And this concludes our paper, May June 23।